Hello everyone, welcome to the part 4 of our prelims discussion. Uh, so we'll start from here. Question number 61. The organisms cicada, froghopper, pond skater. Now, if you see the trend, each year since last 3 years, each year one this kind of questions are coming. Like they'll give the names and they'll ask, कि ये है क्या exactly, whether they are birds or fish or insects. Every year one question is coming. So here pond skater are insects. Okay, so here like as far as I know, pond skater are insects. I do not know about cicada and froghopper, but yes, pond skater are insects. So the answer is insects. Second, consider the following statements. Statement 1: many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution. Statement 2: many chewing gums contain plastic as gum base. Yes, this is the correct explanation. Like it's a very surprising fact that chewing gums which you have, it contains 95% of plastic. So it is a chewing gums are a big source of plastic pollution. Are a big source of plastic pollution. Now these kind of questions are very general questions. We cannot categorize into a particular subject, or we cannot expect these kind of questions will be taught by anyone. These are very general questions which you should know from paper reading or any internet stuff or anything डे टू डे लाइफ से जो हम एक्सपीरियंस करते हैं. ये सब चीज़ बहुत ही रेगुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस होता है, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर दे विल आस्क. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स कंट्री एंड एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. कौन से एनिमल उसके नेचुरल हैबिटेट में मिलता है? Brazil, Indonesia, elk, Madagascar, bonobo. Now this question is actually a very difficult, tough question. Like these kind of questions, these are if you know, you know. If you do not know, you cannot guess anything. You cannot guess anything from this kind of questions. So here, India is not from Brazil. It's from Madagascar. Elk is not from Indonesia. It's from North America. Bonobo is not from Madagascar, it's from Congo. So all three are wrong options here. So none is the correct answer. Okay. Next, 64. Consider following statements regarding World Toilet Organization. Now this is also IR topic. उतना तो news में नहीं रहता है, but again these kind of questions you should, it can be solved. Now if you do not read also, it can be solved. How? First of all, see the options. World Toilet Organization, basically it is in from Singapore, 2001 or 2002 से आया था. Now the question is one of the agencies of United Nations. अगर ये कोई United Nations का एजेंसी होता है तो 100% कहीं ना कहीं हम जब United Nations पढ़ते हैं, because United Nations is a very important topic. So any famous organization which works under the United Nations, maybe no, like we can know it from our sources. And if last year 1.5 साल से जब हम पढ़ते हैं, we can know it at least here and there, any test series or something we can know. But it is not an agency of United Nations. You can very easily guess, because वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कभी उतना मतलब एक एस्पिरेंट का लाइफ में न्यूज में उतना नहीं आता है. सो ये तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं. तो वन अगर हम कैंसिल करेंगे, सो सी ऑप्शन इज डन. ओके, और अगेन आंसर नहीं बन रहा है. So if you see World Toilet Summit, World Toilet Day, World Toilet College are initiatives of this organization to inspire action to tackle the global sanitation crisis. तो हम एक कैलकुलेटेड गेस ले सकते हैं कि हाँ, जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सब सबमिटेड, ये सब चीज इनिशिएटिव उनका हुआ होगा. तो ऑप्शन 2 तो करेक्ट है. सो इफ 2 इज करेक्ट, तो बी कैन बी कैंसल्ड हियर. नाउ you have to go either only 2 or 3. Now if you see, it is so basically these are all not for profit organization. कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, सैनिटेशन में काम करते हैं. So the main focus of the function is to grant funds to the least developed countries and developing countries to achieve the end of open defecation. So 2 and 3 are correct. ये statement काफी रेगुलर स्टेटमेंट है. So 2 and 3 are correct. So in this way, you can, these questions can be attended. If you do not know also, at least एक स्टेटमेंट से एक हायरार्की थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन. यस, लायंस का कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है.
अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर कैट्स चीताज डू नॉट रोर. यस, चीता रोर नहीं करता है. स्टेटमेंट इज करेक्ट. Unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. तो यहाँ पे एक चीज है, दिस एक्चुअली द स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट अनलाइक. मेल लायंस भी सेंट मार्किंग से करते हैं. सो आंसर 1 and 2 आर करेक्ट. ना सेंट मार्किंग क्या है? बेसिकली होता क्या है, दे यूरिनेट फिर उसी स्मेल से जाके वो अपना कहीं ना कहीं टेरिटरी प्रोक्लेम करते हैं. सो बोथ मेल लायंस एंड मेल लेपर्ड डू बोथ proclaim their territory by scent marking and male lions do by roaring also. मेल लायंस रोरिंग से भी अपना जगह जो टेरिटरी प्रोक्लेम करते हैं, सेंट मार्किंग से भी करते हैं, एंड इवन मेल लेपर्ड्स आल्सो. सो इज अनलाइक वर्ड है, यही स्टेटमेंट को गलत कर देता है. सो आंसर 1 and 2 आर करेक्ट. सो लायंस हो गया, लेपर्ड्स हो गया, जो भी मेन हमारा जो स्पीसीज है और एनिमल्स हैं, तो उनके बारे में थोड़ा उनका बिहेवियर, एवरी ईयर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो कमिंग. सो उनका जो बिहेवियर है आपको नोट्स में प्रिपेयर करना पड़ेगा. उनका जो बिहेवियरल पैटर्न है, ठीक है. लायन हो गया, लेपर्ड्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया. एलिफेंट का क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 साल पहले. लेकिन बिहेवियरल पैटर्न दे आर आस्किंग, सो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, अगेन वन मोर क्वेश्चन from again IR news related question, that is 100 million farmers. 100 million farmers क्या, ये एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे एक इनिशिएटिव हुआ था या फिर एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं फॉर एक्सीलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम्स दैट आर नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव एंड एम्स टू इंक्रीज फार्मर रिजाइलेंस. सो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि बोलता है कि फूड एंड वाटर का जो सिस्टम से हम ट्रांजिशन करेंगे कार्बन न्यूट्रल को. ठीक है. सो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे हुआ था. ये एक प्लेटफॉर्म है, ये कोई अलायंस नहीं है, ये कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि कुछ ब्लॉकचेन रिलेटेड कुछ नहीं है यहाँ पे. जस्ट ये दीज स्टेटमेंट्स आर जस्ट टू ट्रैप यू, जस्ट टू ट्रैप. आप सोचोगे, आप पढ़े नहीं हो, लेकिन फिर भी यू विल थिंक एंड विल टेक अ गेस और वो नेगेटिव मार्किंग हो जाता है. और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है टू फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वैसा करके कुछ नहीं है. सो इट इज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो यहाँ पे भी गेस लेना मुश्किल हो जाता है. सो बेटर टू अवॉइड इट. इफ यू नो बिकॉज ऑप्शंस आप देखोगे 2 से 3 ऑप्शंस काफी कुछ फार्मर्स रिलेटेड बात कर भी रहा है. इधर भी फर्टिलाइजर के बात कर रहा है, इधर भी एग्री बिजनेस के काम कर रहा है, इधर भी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर रहा है, इधर भी फार्मर के वजह से बात कर रहा है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस इफ यू डू नॉट नो. ओके, फाइन. नेक्स्ट, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल्स एंड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स. पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज. नाउ यहाँ से आपको एक चीज तो पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज है क्या. सो दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज. इफ यू सी हियर, distributed energy resources. So distributed energy resources refers to often smaller generation units that are located on the consumer's side of the meter. Smaller generation units that are located on the consumer side of the meter. जैसे कि rooftop solar voltaic units consumer side से हम यूज करते हैं. Wind generating units, battery storage, biomass generators, fuel cells, ये सब examples है of distributed energy resources. ठीक है. One second. The next question, question number 68. Which one of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it, and it is the only insect that can pollinate this tree? Fig, mahua, sandalwood, and silk cotton. So the answer is mahua because mahua का एक bats के साथ relation है जो कि उनको पॉलिनेट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, उनको पॉलिनेट करने में हेल्प करता है. इट इज द बैट्स. सो ये भी काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है अनलेस एंड अंटिल यू हैव सो मच इंटरेस्ट इन इंसेक्ट्स एंड समथिंग, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है. अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो यहाँ पे आप गेस बिल्कुल नहीं कर सकते. नेक्स्ट,
Butterflies, fish, frogs, how many of them have poisonous species among them? पॉइजनस स्पीसीज कौन कौन है? बटरफ्लाइज, यस, बटरफ्लाइज में भी कुछ पॉइजनस स्पीसीज होते हैं, जैसे कि जायंट अफ्रीकन शैलोटेल। फिश में भी होते हैं, सारे फिश नहीं होते, लेकिन देर आर फिश जैसे कि स्टोन फिश जो कि इंडो पैसिफिक एरिया में मिलते हैं। फ्रॉग्स बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी यस देर आर सम फ्रॉग्स, बहुत ही कम स्पीसीज है, 2-3 स्पीसीज है, नाम मुझे पता नहीं, लेकिन यस देर आर सम फ्रॉग्स विच आर कंसिडर्ड पॉइजनस। सो आंसर इज ऑल 3, but yes, frogs are very rare, as I mentioned here, these are very rare. नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ट्री नेटिव है? सो ये नेटिव के ऊपर काफी क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन आया है, ठीक है। कैशियो ब्राजील से आया है, बिकॉज पोर्तुगीज फिर उसके बाद पोर्तुगीज लेके आए थे। आप अगर पोर्तुगल का जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहां पे हमने ये लाइक मेरी हिस्ट्री क्लास में ही मैंने बताया था कि कैश्यू नट्स ये सब पोर्तुगल से आया है, ठीक है। सो नेटिव तो है नहीं। पपाया मेक्सिको एंड नॉर्थ अमेरिका के आसपास वहां पे मिलता है। रेड सैंडर्स इंडिया का है, जो कि वेरी फेमस है, ये इजी है। रेड सैंडर्स आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। सो ओनली 1, सो द आंसर इज ओनली 1। कंसिडर फॉलोइंग एयरपोर्ट, सो ये भी न्यूज में था। डोनवी पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन द रिसेंट पास्ट व्हिच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स। तो ये भी न्यूज में था, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। द फर्स्ट ऑफ द आंसर इज डोनवी पोलो एयरपोर्ट, जो कि ईटानगर में है। इट इज इन ईटानगर। ये ईटानगर में है। कुशीनगर वी ऑल नो कुशीनगर, तो ये दोनों आंसर इज करेक्ट। विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज नॉट कंस्ट्रक्टेड एज ए ग्रीन फील्ड। ये न्यूज में कहां से था? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे न्यूज में है। सो आप अगर ध्यान से देखेंगे 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स टू बी सेट अप इन द कंट्री। 11 ऑपरेशन हो चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का साइड। 13 मार्च 2023 का न्यूज है, लास्ट साल का न्यूज है। सो दीज काइंड ऑफ न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो मिल गया था। आउट ऑफ दिस 11, ठीक है, 11 ऑपरेशनल होगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन से में काम शुरू हो गया है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स काम शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, क्वेश्चन में ये लिखा है। सो आप देखोगे ये सब है दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाक्योंग, कालाबुर्गी, ओरवाकल कुर्नूल में है, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर है, ईटानगर, वही डोनवी पोलो एयरपोर्ट, उसका नाम ही है डोनवी पोलो, ठीक है। शिमोगा एंड मोपा, और यहाँ पे विजयवाड़ा नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट, विल कम अप विद द नेक्स्ट पार्ट।